Hello students, welcome in Classic Economics in Punjabi. Students, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बारे हर एक सिटीजन नू, हर एक व्यक्ति नू पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सिर्फ उन्होंने ही पता हो। एक कॉमन मैन नू भी पता होना चाहिए है साडे देश का जिहड़ा सेंट्रल बैंक है या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो की हुंदा है ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ हैं। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ हैं सेंट्रल बैंक। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक ਤੇ। सेंट्रल बैंक ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सेंट्रल बैंक ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सेंट्रल बैंक ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ सेंट्रल बैंक ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ सेंट्रल बैंक ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ सेंट्रल बैंक ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? 1668 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो सेंट्रल बैंक का जोड़ा इतिहास है बहुत पुराना है। 17th सेंचुरी 17वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ 1668 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? स्वीडिश रिक्सबैंक। स्वीडिश रिक्सबैंक ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ सेंट्रल बैंक ਸੀ। परंतु ये जिहड़ा सेंट्रल बैंक सीगा इस नूं इफेक्टिव सेंट्रल बैंक नहीं मन्निया गया। जो इफेक्टिव सेंट्रल बैंक है वो आया होंद विच 1694 विच, जदों बैंक बनया बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड दे विच सेंट्रल बैंक स्थापित होया 1694 ईस्वी विच 1694 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦ ਬੈਂਕ ਦ ਫਰਾਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ USA ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦ ਬੈਂਕ ਦ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, और ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ RBI, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। RBI ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ RBI ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ।
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है, भारत दा केंद्रीय बैंक की है, या भारत के केंद्रीय बैंक का की नाम है? तो आंसर होएगा आरबीआई, और फुल फॉर्म की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कदों होंद विच आया? 1 अप्रैल 1935। एक फैक्ट तुहानूं दस्सण लग्या सारे स्टूडेंट्स नूं, सारे व्यूअर्स नूं, कि जदों आरबीआई बनिया सीगा 1935 ਨੂੰ, आरबीआई ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਆਰਬੀਆਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1937 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁੰਬਈ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਬੀਆਈ ਬਣ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨ 1949 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨ 1949 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1949 ਚ। ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो उस नूं तुसीं लर्न कर सकते हो। तो यह स्टूडेंट केंद्रीय बैंक का इतिहास। हुण आपां गल करते हैं केंद्रीय बैंक का अर्थ की है। पेपर दे विच आ जांदा है केंद्रीय बैंक की है। आपां बैंकिंग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ लैक्चर्स विच। अपने इस चैनल ते क्लासिक इकोनॉमिक्स इन पंजाबी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तुसी प्लेलिस्ट खोलोगे बैंकिंग दी, उस विच तानू इस तो पहला वाली सारी वीडियोज़ मिलणगियां। व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक की हुंदा है? फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उस ते 3 वीडियोज़ बनी हुई हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक अलग है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक अलग है, सोशल फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक अलग है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। स्टडी के लैवल्स होंगे हैं। स्टडी हमेशा जो करते हैं आप मिनीमम तो मैक्सीमम वाल जाना होंगे, थोड़े तो ज़्यादा वाल जाना होंगे। तो मेरे इन्होंने लैक्चर्स विच तुहानू एक लैवल अप स्टडी मिलूगी। उस चीज़ बारे, हर कॉन्सैप्ट बारे एक डिटेल नॉलेज मिलूगी विद फैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स तुसी क्लासिक इकोनॉमिक्स इन पंजाबी नाल जुड़े रहो। फ्यूचर दे विच तुहानू बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। जिन्ने भी व्यूअर्स हैं जो भी क्लासिक इकोनॉमिक्स नाल जुड़े हुए हैं, उन्होंने फ्यूचर से फायदा होएगा। इस तरीके की जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स नाल रिलेटेड, होर इस नूं आपां एक्सपेंड करांगे, बहुत सारी गल्लां तुहानू दस्सिया करांगे। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक का अर्थ की है? 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है पेपर से। हर क्लास जिथे इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग है,
ਉੱਥੇ क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का हो सकता ना, अलग अलग नेम्स हैं सेंट्रल बैंक्स के। जिमें इंग्लैंड विच बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमरीका च फैडरल रिजर्व बैंक है, इंडिया च RBI है। तो कॉमन मीनिंग होता है सेंट्रल बैंक की है। तो पंजाबी च दस रहे आप, इत्थे मैं इहदा मीनिंग लिखा है। ये लिखण का एक ही मोटिव है मेरा कि सारे स्टूडेंट्स सुन के नहीं सीख सकते, सुनन नाल सारी जानकारी नहीं कलैक्ट कर सकते तुसी माइंड च, उन्होंने कुछ लिखित चाहिए है। तो तुसी नाल नाल मेरे जिमें मैं इनू पढ़ूंगा या बोलदा, ये स्टूडेंट्स ਲਈ मेहनत है मेरी। तुसी इनू नोट्स बना सकते हो, इस वीडियो ਨੂੰ पॉज करके इनू लिख सकते हो। ये ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ मैटर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक परफेक्ट पैकेज है सेंट्रल बैंक के मीनिंग का। केंद्रीय बैंक एक अजिही संस्था है जो कि मौद्रिक अते बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। समझो, केंद्रीय बैंक एक अजिही संस्था है। केंद्रीय बैंक एक संस्था होती है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। हर संस्था का एक हैडक्वार्टर होता है। RBI का हैडक्वार्टर मुंबई से। केंद्रीय बैंक एक संस्था है जो मौद्रिक अते बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। मौद्रिक, मौद्रिक मतलब मनी, मनी दी पूर्ति या आप पंजाबी च कहिए मुद्रा की पूर्ति। किन्ने नवे नोट छापने चाहिए, मुद्रा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। पहला सी सप्लाई ऑफ मनी, ये अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। लोगों के हत्थों च किन्ना कैश रखन देना चाहिए, किन्ना लिक्विड मनी लोगों के हाथ से होवे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर की होवे। ये सारा सिस्टम आता मौद्रिक दे हेठां। तो जिन्ना भी मुद्रा का संचालन है, सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की उपलब्धता और मुद्रा की लागत यानी कि ब्याज की दर, उस नाल संबंधित सारा संचालन प्लस बैंकिंग प्रणाली। जिन्ने भी व्यापारिक बैंक हैं वो सारे अंडर कंट्रोल होंगे हैं सेंट्रल बैंक दे। सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक होंदा है, सारे बैंकों का बैंक होंदा है। प्राइवेट सैक्टर के चाहे कॉमर्शियल बैंक है, चाहे सरकारी सैक्टर के कॉमर्शियल बैंक है, सारे अंडर कंट्रोल काम करते हैं सेंट्रल बैंक दे। तो सारे बैंकों के जो नियंत्रण है वो करता है केंद्रीय बैंक। ता करके ये मीनिंग तुहानू क्लीयर हो जाएगा। एक लास्ट वारी मैं पढ़ देना। केंद्रीय बैंक एक अजिही संस्था है जो कि मौद्रिक अते बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। स्टूडेंट्स, वीडियो नू या लैक्चर नू शुरू तो लैके एंड तक पूरा सुनना है। एक बारी सुनोगे काफ़ी लर्न हो जाएगा। जे एक बारी होर सुन लोगे तो 101% सारे का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एक चैलेंज है ये मेरा, इस फ्रंट ते या इस बोर्ड ते जो तुसी मैटर देख रहे हो, एक इन्नी स्पेस ते इन्नी सारी नॉलेज एक थां ते तुहानू किते भी नहीं अवेलेबल हो सकती। ये तुहानू अवेलेबल कराई गई है क्योंकि मेरा एक शौक है कि बच्चा नू हर चीज पता लगे। ये पढ़ाई तुहानू अज काम नहीं आनी, ये वाली जो मैं पढ़ा रहा, फ्यूचर की स्टडी है। तुसी कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम्स लई तैयारी करोगे, इकोनॉमिक्स दे विचों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हां विचों बैंकिंग एक खास फील्ड होता है। तो तुसी PCS, UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कोई भी स्टेट लेवल के बहुत सारे टेस्ट होंगे हैं, कोई पटवारी का, कोई होर टेस्ट होंगे हैं फील्ड ऑफिसर्स के, उन्हां दे विच ये सारी जानकारी तुहाडे लई हैल्पफुल होएगी। ये मेरा चैनल है, ये अकैडमिक है, ये तुहानू एक टॉपिक स्टडी करांदा है सिलेबस के नाल रिलेटेड। जेकर इन्हां दे विचों आपां जानकारी कढ लईए तो बहुत सारी कंपीटेटिव एग्जाम्स की जानकारी निकलती है।
और जो व्यूअर्स तैयारी कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। केंद्रीय बैंक एक अजिही संस्था है जो कि मौद्रिक ਅਤੇ बैंकिंग प्रणाली का संचालन करती है। कहानी खत्म। पर समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है, ਤੁਹਾਡੀ समझ विकसित होनी चाहिए है। स्टूडेंट्स केंद्रीय बैंक ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, शिखर ते हुंदा है, सब तो ऊंचा हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब केंद्रीय बैंक हर एक देश का सेंट्रल बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, अपेक्स बैंक है, बाकी सारी बैंकिंग सिस्टम उसके हेठा काम करते हैं। दूसरा ये बैंक देश के सारे किस्म के नोट छापता है, इशू ऑफ नोट्स, जिन्ने भी नोट हैं सारे कौन प्रिंट करता है? केंद्रीय बैंक। पर भारत विच याद रहे जीके का क्वेश्चन है, 1 रुपए का नोट जिहड़ा है वो आरबीआई जारी नहीं करता। जीके का क्वेश्चन है 1 रुपए का नोट कौन जारी करता? एक नंबर से आ भी जाता क्वेश्चन। तो 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। और 1 रुपए के नोट के जो सिग्नेचर होंगे ना स्टूडेंट्स वो होंगे वित्तीय सचिव दे। ये भी क्वेश्चन होता है 1 रुपए के नोट से कौन सिग्नेचर करता है या किस दे सिग्नेचर होंगे? भारत के वित्तीय सचिव दे। और 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी नोट हैं, कुछ नोट जेड़े हैं आजकल ट्रेंड से हैं, कुछ नहीं भी हैं। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए का नोट। ये सारे नोट जारी करता है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। और सारे दे साइन होंगे आरबीआई के गवर्नर दे। आरबीआई का गवर्नर लिख देता है, उत्थे साइन कर देंगे, लिखा होता मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जब भी नोट ते इस तरह सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो लीगल टेंडर बन जाता है। बाकी फिर गल करांगे, फंक्शंस आएंगे उदों गल करांगे। दूसरे बैंकों ते नियंत्रण रखता है। मैं पहला ही दसिया कि सारे जेडे बैंक है कॉमर्शियल इसके हेठा काम करते हैं। सरकार का बैंक है, जिमें व्यापारिक बैंक लोगों नाल डील करते हैं उस तरह सेंट्रल बैंक सरकार नाल डील करता है। यह बैंक साख नियंत्रण भी करता है। साख मतलब क्रेडिट क्रिएशन, मतलब बैंक्स जो उधार देते हैं उसनों नियंत्रण करता है। किन्ने उधार देने, उधार घटाने के वधाने, यह आप डिस्कस करांगे नेक्स्ट ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, नहीं तो ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਾਖ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬੁੱਕ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ। एक डेफिनेशन है सम्मेलन दी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देना। केंद्रीय बैंक का एक मुख्य कार्य है वो अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति जिहड़ी मैं हुणे बोलिया सी किन्ने नोट छापने हैं, साख के नियंत्रण का काम करता है। ये एग्जैक्ट याद करनी है सम्मेलन दी। एक डेफिनेशन होर ऐड की थे डी कॉक के अनुसार। डी कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक की मानता साधारण तौर पर उस बैंक नूं दित्ती जाती है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के शिखर ते हुंदा है। तो स्टूडेंट्स ये सी लैक्चर केंद्रीय बैंक। स्टूडेंट्स जेकर तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो, वीडियो नूं लाइक जरूर करो। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई होए तां वीडियो नूं अपने मैक्सिमम दोस्तों के नाल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नाल शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल तक पहुँच सकन और उन्होंने भी इस चैनल का बेनिफिट हो सके। देखो ये सारी मेहनत तुहाडे लई कीती जा रही है, पर्सनल कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक शौक है, इंटरेस्ट है
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਵੇਟ। ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।